हेलो गाइस। तो यस 109 की रिवीजन करते हैं इसमें फटाफट। ये भी मेरी फ्रेंड ने रिकॉर्ड की है जो May 24 में सीए बन चुके हैं। जैसे हमारे 103 की हमने रिवीजन देखी और 110 की। तो गाइस सुनिए फटाफट। ऑल द बेस्ट। Financial instruments. Now in financial instruments we have three Indias. Indias 32, Indias 109 and Indias 107. In Indias 32 we basically learn about definitions की क्या चीज़ क्या होती है. Now firstly, what is a financial instrument? It is ऐसा type का contract or something you can say in which the entire transaction is basically a financial asset for one party and a financial liability for the other party. So we have to learn the definition कि financial asset क्या होता है and liability क्या होता है. Now what is a financial asset? पहली बात तो basically in short अगर मतलब बोलूँ तो something जिससे हमें cash मिलता है या something which is highly liquid in nature. So जैसे कि cash हो गया, equity shares of some another company, okay, not your own company obviously, of some another company, या फिर contractual right to receive cash जैसे कि debtor हो गया, contractual right to receive equity instrument जैसे कि मैंने डिबेंचर बाई किया था एंड वो कन्वर्टेबल था, सो आई एम गोइंग टू रिसीव इक्विटी शेयर्स, वो भी हो गया. या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर फाइनेंशियल असेट, या फिर ऐसा डेरिवेटिव पोजीशन जो फेवरेबल हो. दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल असेट. ओके, जैसे कि कैश, ट्रेड रिसीवेबल. इन्वेंट्री इज़ नॉट अ फाइनेंशियल असेट बिकॉज यू डोंट नो फॉर श्योर कि कितने में बिकेगा, कब बिकेगा, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है. वर्सेस ट्रेड रिसीवेबल के केस में हमें पता है कि इतने टाइम में उसके पैसे ड्यू है एंड दिस इज़ द अमाउंट दैट आई हैव टू रिसीव, सब्जेक्टिंग टू फॉरेक्स रिस्क और सब कुछ तो मैं नहीं देख रही, बट इन जनरल दिस इज़ द अमाउंट दैट आई शुड गेट. या फिर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड हो गया जिसमें हमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी मिलता है एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट भी मिलता है. Gold is not a financial asset. Similarly, PPE is not a financial asset. All right. Prepaid expense is also not a financial asset because हमें उसके बदले पैसे नहीं मिलने वाला. हमें उसके बदले you're going to get some asset or some service eventually in the future, but you're not getting any money out of it. So that's not a financial asset. Income tax refund, anything under like that is not your contractual right? It is a statutory right, so it does not come under financial asset. Now what is a financial liability? Financial liability basically contractual obligation to deliver cash या फिर contractual obligation to deliver any other financial asset. अगर derivative case में हो तो contractual obligation to exchange financial asset or something जब तुम्हारा derivative unfavorable position में हो, and contractual right to issue shares. But अब issue shares कब आता है? जब आपकी position जो है, now there is something called as CFI, right? CFI क्या होता है? CFI is something जिसमें you are giving little bit of equity and little bit of financial liability. All right, जैसे कि तुम्हारा convertible debenture हो गया, from I have to pay you interest and also I have to give you shares. अब interest का component financial liability है, लेकिन जो मैं तुझे shares दे रही हूँ मेरे company के, that is equity. अब अगर ये फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट होता है, दैट इज़ बेसिकली ऑन द डे वन इटसेल्फ यू नो दैट कितने डिबेंचर के अगेंस्ट कितने इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं. इफ़ दैट इज़ ऑल फिक्स्ड तो फिर यू विल रिकॉर्ड दिस एज इक्विटी. बट इफ दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, ओके, इट्स वेरिएबल. आई डोंट नो today that how many equity shares I'm going to give you of my company. In that case that will come under financial liability. So अगर मेरा variable number of equity shares I'm giving तो financial liability में आएगा. अगर fixed number of equity shares है तो फिर वो equity में जाएगा, FL में नहीं आएगा. तो एक जनरल रूल क्या बोलता है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी तब रिकॉर्ड करो जब तुम्हें फॉर श्योर पता है कि ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, या फिर ऐसा है कि प्रोविजन जैसा कि यार तू एस्केप नहीं कर सकती तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर रिकॉर्ड करो. ओके, नाउ प्रेफरेंस शेयर्स इशूड. अब प्रेफरेंस शेयर्स इशूड में ऑल्सो डिपेंड्स. कभी कभार हम क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल होता है एंड समटाइम्स दे आर नॉट कन्वर्टेबल. इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल तो तेरा डिविडेंड पार्ट ऑल्सो यू हैव टू पे देम कैश एंड इवन प्रिंसिपल पार्ट यू हैव टू पे देम कैश. इन दैट केस दिस एंटायर थिंग इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. वर्सेस अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता तो फिर ये CFI बन जाता, बिकॉज इसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है इन दैट अगेंस्ट दैट इफ यू गिविंग फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो फिर ये इक्विटी का पार्ट बन जाता. सो इन जनरल बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स का प्रिंसिपल मे बी गिवन इन कैश एंड इन दैट केस फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगा. एज पर इंडिया इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रेफरेंस शेयर्स तुम्हारे इक्विटी के पार्ट ही बनेंगे.
दिस इज नाउ योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी. मूविंग फर्दर अहेड, अब डिबेंचर इशूड के बारे में बात करते हैं. ठीक है, डिबेंचर इशूड दो तरीके के हो सकता है. रिडीमेबल हो सकता है जिसमें तुम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, प्रिंसिपल भी पे कर रहे हो. इन दैट केस बोथ ऑफ देम आर FL, फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट. एंड एक कंपल्सरी कन्वर्टेबल होता है. कंपल्सरी कन्वर्टेबल में तो मतलब फॉर श्योर में इक्विटी शेयर्स देने हैं तो CFI बन गया. बट अगर ऐसा हो कि ऑप्शन टू कन्वर्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन टू कन्वर्ट में अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शन टू कन्वर्ट एक्चुअली होल्डर के पास है कि इशूअर के पास है. नाउ CFI का जो कंसेप्ट होता है दैट ओनली कम्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इशूअर, विच इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी लाइबिलिटी है, राइट. क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी इक्विटी दोनों क्रेडिट बैलेंस. अगर तेरा असेट है देन इन दैट केस CFI और सबके बारे में सोचना ही नहीं है, इट इज़ ऑलवेज योर असेट. बट अगर तेरा लाइबिलिटी है देन यू हैव टू थिंक इट इज़ एन FL और एन इक्विटी. अब लेट्स से डिबेंचर कन्वर्टेबल है एंड कन्वर्टेबल ऑप्शन जो है दैट इज़ विद द होल्डर ऑफ द डिबेंचर. ओके, होल्डर मतलब मेरी कंपनी ने इशू किया है डिबेंचर एंड सामने वाले मिस्टर एक्स ने बाई किया है. अब मिस्टर एक्स इज़ द होल्डर ऑफ द डिबेंचर, बेसिकली द वन हु इज़ बॉट द डिबेंचर. अब वो अगर बोले कि उसको कन्वर्ट करना है या फिर वो मेरे पास से पैसे मांगे, मैं मेरी लाइबिलिटी को कभी भी ना नहीं बोल सकती. इट इज़ लाइक अगर वो मांगे तो मुझे उसको पे करना ही पड़ेगा. सो दैट इज़ वाई इफ़ द ऑप्शन इज़ विद द होल्डर तो फिर मैं प्रिंसिपल को भी FL के तरह से ही रिकॉर्ड करूँगी. आई वोंट से equity because I cannot avoid my liability if Mr. X comes. That's why it is FL. But now if the option is with the issuer, that is I have the option कि मुझे इक्विटी देना है या फिर मेरे को पैसे देने हैं लोग को बाद में, then in that case I'll think that यार if it is with me and I'm sure कि यार मैं इक्विटी ही दूंगी, मैं बाद में लोग को पैसे नहीं देने वाली, तो फिर इन दैट केस मैं प्रिंसिपल को इक्विटी जैसे ट्रीट करूँगी एंड ये CFI बन जाएगा. ओके, परफेक्ट. नाउ फिक्स टू फिक्स टेस्ट में हमारा जो भी डिबेंचर का अमाउंट होता है एंड इक्विटी शेयर्स का अमाउंट, दोनों अमाउंट फिक्स होने चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि एक अमाउंट फिक्स है दूसरा अमाउंट फिक्स नहीं है. ठीक है, ये सब डेफिनेशन हो गया. अब उसके बाद क्लासिफिकेशन. नाउ क्लासिफिकेशन एंड ऑल बेसिकली डिटरमाइंस कि तुम लोग कौन सी मेथड से अकाउंटिंग करोगे. देख, होल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. एक हमारा हम लोग ने AFM में सीखा कि इतना परसेंटेज इंटरेस्ट मिल रहा है, बट YTM उसका अलग होता है. ऑल ऑफ दैट ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम योर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एंड फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वन थिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दैट सम एक्सपेंस और समथिंग दैट यू आर बुकिंग is actually properly proportionated or divided amongst the periods in which you are actually going to get the benefit of that asset or you're going to pay that liability off. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन सम वन अकाउंटिंग पीरियड कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा एक्सपेंस इनकम या कुछ ज़्यादा ही चला गया एंड दूसरा अकाउंटिंग पीरियड कुछ नहीं है. इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग दैट वी आर लर्निंग. ओके, अब इसमें कैसा होता है ना, पहले तो तुम लोग देखते हो कि तुम्हारी जो ये होती है, तुम्हारी जो कंपनी होती है, मतलब अकाउंटिंग के लिए ना दो टेस्ट होती है. एक होती है बिजनेस मॉडल टेस्ट विच इज़ एंटिटी स्पेसिफिक, दैट इन जनरल व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस योर एंटिटी इज डूइंग. डज इट वांट टू इन जनरल होल्ड द असेट्स और इट इज़ इन दी बिजनेस की यार होल्ड या ट्रेड, जो भी मुझे अच्छा ऑप्शन मिला मैं वो कर दूंगी, या फिर प्योर ट्रेडिंग करती है. दैट इज़ योर एंटिटी स्पेसिफिक टेस्ट. एंड देन देर इज CCFC टेस्ट, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट. इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक देखते हैं कि ये जो अब एक मेरी एंटिटी को इन जनरल तो होल्ड करना है, बट अब ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो मुझे होल्ड करना है कि वो मुझे ट्रेड करना है. सो CCFC टेस्ट मेट, बेसिकली मेट कब होता है, जब एकदम मेच्योरिटी तक यू हैव द इंस्ट्रूमेंट विथ यू. दैट इज़ द लास्ट डे जब तेरा बॉन्ड रिडीम हो रहा है तब तक तेरे पास हो, तो फिर CCFC टेस्ट इज मेट. बट अगर तूने बीच में कभी भी बेचा देन इन दैट केस इट इज़ नॉट मेट. ओके, सो पहली बात तो शेयर्स की मैच्योरिटी कब होती है. शेयर्स की मैच्योरिटी तो कभी नहीं होती, डायरेक्टली लिक्विडेशन के टाइम ही मैच्योर होता है, ऐसा समझो. तो इन जनरल CCFC टेस्ट इज नेवर मेट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके, अब नाउ टू सी वेदर हमारा क्या टाइप का अकाउंटिंग होना चाहिए. इफ़ योर एंटिटी बिजनेस मॉडल इज ऑफ होल्ड, लाइक इन जनरल वी यूजुअली होल्ड द सिक्योरिटीज़, हमें ट्रेड नहीं करना है, वी वांट टू रीप द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट टिल द वेरी एंड, हमारा होल्ड वाला मॉडल है. एंड प्लस जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी का है उसका CCFC टेस्ट इज ऑल्सो मेट, मतलब ये भी होल्ड वो भी होल्ड सब होल्ड, तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे अकाउंटिंग करेंगे.
दैट इज़ योर ACM मेथड एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड. अगर CCFC टेस्ट इज़ नॉट मेट, तेरी बिजनेस एंटिटी का बिजनेस होल्ड करना है लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट के लिए तेरी टेस्ट मीट नहीं हो रही, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, राइट, उसके केस में मेरा कभी मीट ही नहीं होने वाला, तो फिर FVTPL. ओके, अगर मेरा बिजनेस होल्ड या फिर ट्रेड, होल्ड और ट्रेड वाला है, विम्सिकल है, बट CCFC टेस्ट इज मेट, तो फिर FVTCOCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI रिवर्सिबल. R इज रिकग्नाइजेबल. R क्या होता है मैं भूल गई. एंड देन उसके बाद अगर इफ इट इज़ नॉट मेट, सी इन जनरल देख, जब भी नॉट मेट होता है ना CCFC, तभी FVTPL इर्रिस्पेक्टिव के तुम्हारा अकाउंटिंग क्या है. अगर तुम्हारा एंटिटी का मॉडल ही ट्रेड करना है प्लस CCFC बैठनी है तो एकदम FVTPL, मतलब ट्रेड कर रहे हो ना तब FVTPL आता है बेसिकली. वर्सेस अगर तुम्हारा ऐसा है कि यार हम पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, ऐसा डाइसी, तो फिर हम देखेंगे कि FVTPL है वैसे एज सच, बट देर इज़ एन इर्रिवोकेबल ऑप्शन इफ़ यू वांट टू यूज़ FVTOCI NR. अब FVTPL में क्या होता है ना, बेसिकली मेरा एंटिटी का रीमेजरमेंट होता है, लाइक ईयर एंड पे या कभी भी मेरे शेयर्स का कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, वो मेरे को PNL के थ्रू ही रूट करना पड़ेगा. सो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट माई प्रॉफिट अ लॉट and continuously. Versus if I don't want to do that, then I have an option only in case my business model is hold and CCFC test is not met, या फिर मेरा business model hold और trade वाला है and CCFC test is not met. सिर्फ ये दोनों केस के में एक ऑप्शन है that I can choose an irrevocable option to use FVTCI fair value through OCI, but NR वाला. देख OCI में मैं समथिंग दिखाती हूँ ना प्रॉफिट, बेसिकली मैं फाइनेंशियल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, PNL का प्रॉफिट मतलब मेरा एकदम डायरेक्ट रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज दैट्स माई प्रॉफिट यार, मेरा प्रॉफिट ऊपर है नीचे, लाइक शेयर होल्डर्स डायरेक्टली वो देखेंगे. बट OCI इज समथिंग दैट इज़ अ नॉन रियलाइज्ड प्रॉफिट. सो एज अ शेयर होल्डर हु नोज स्टफ कि यार ये नॉन रियलाइज्ड है, इसमें ये गेन है, इसमें फ्लक्चुएशन है, तो ठीक है, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मेरे एकदम PNL को इम्पैक्ट कर रहा है तो शेयर होल्डर इज़ मोर कॉशियस. तो इसलिए सिर्फ ये दोनों केस में हम लोग ने बोला कि तुम्हारे लिए इतना एक्सट्रीम नहीं डालता है, तुम लोग को चाहिए तो FVTOCI NR के बेसिस पे भी कर सकते हो. ओके, नाउ ACM का मेथड देखा. अब ACM अकाउंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एंड दैट इज़ व्हाट वी गोना डू अ लॉट इन दिस. अब ACM अकाउंटिंग में भी ना, इसमें वील बेसिकली बी डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स. ओके, वन इज़ कि जिसमें हम बोलेंगे कि फेयर वैल्यू इज़ इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, वो अजम्पशन मारेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि फेयर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस. एंड देन देयर इज CFI का अकाउंटिंग, वो एक थर्ड पार्ट हो गया. ओके, नाउ व्हाट इज़ फेयर वैल्यू. बेसिकली जब भी तुम्हारे टर्म्स होते हैं ना मार्केट के, ओनली इन दीज 3 कंडीशंस दैट आई एम सेइंग राइट नाउ, सिर्फ ये 3 कंडीशन में हमें फेयर वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी. अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जैसे कि पेरेंट सब्सिडरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, लेसी लेसॉर, वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, या फिर इट इज़ अ CFI, या फिर लेवल 1 इनपुट, ये तीनों में से कोई एक केस हुआ ना, देन इन दैट केस यू विल हैव टू कंप्यूट फेयर वैल्यू. एंड फेयर वैल्यू इज व्हाट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट EIR, डिस्काउंटेड एट EIR. बट अगर ये तीनों में से कोई केस नहीं हुआ, देन इन जनरल हम अज्यूम करते हैं कि जो डे 1 का प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस, दैट इज इक्वल टू योर फेयर वैल्यू. सो अगर ये 3 केस हुआ, देन यू कंप्यूट योर फेयर वैल्यू. अगर ये 3 केस में से नहीं है, देन यू अज्यूम दैट डे 1 प्राइस इज इक्वल टू योर फेयर वैल्यू. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स. पहला स्टेप कैसा होता है ना, कैश फ्लोज देखो कि तुम्हारे कैसे कैश फ्लोज आ रहे हैं. कैश फ्लो इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक कैश फ्लोज ऑफ योर फाइनेंशियल लाइबिलिटी. देन यू सी द फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू के टाइम तुम लोग देखो कि तुम्हारा वो 3 कंडीशन हो तो फिर कंप्यूट करना पड़ेगा. वो 3 कंडीशन में से नहीं हो, देन इन दैट केस तुम लोग अज्यूम कर सकते हो. अगर अज्यूम कर रहे हो तो बेस्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है. स्टेप 3 कम्स EIR. EIR के केस में हम इंटरपोलेट करके भी निकाल सकते हैं. एंड स्टेप 4 इज लोन अमोर्टाइजेशन टेबल. बेसिकली अपन जब नॉर्मली कैश फ्लोज के बारे में सोचते हैं ना, कैश फ्लो इज समथिंग जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कितना परसेंटेज तुम लोग को कूपन रेट मिलेगा, इतना तुम्हारा रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट एंड 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और वट एवर है, जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. वर्सेस जो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल है, विच इज़ योर LAT, इज द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ विच अपन अकाउंटिंग करेंगे. ओके, सो अकाउंटिंग करेंगे तो अपन कूपन रेट नहीं देखेंगे, वील एक्चुअली सी EIR, बिकॉज वी वॉन्ट टू
डिवाइड एवरीथिंग, हमें वो भी देखना है कि कितने प्रीमियम या डिस्काउंट पे हम लोग ने बॉन्ड खरीदा है, क्या ट्रांजैक्शन प्राइस एक्स्ट्रा पे किया है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया है, एंड अकॉर्डिंगली वील कंप्यूट EIR, एंड EIR के बेसिस पे वील रिकॉर्ड आर इंटरेस्ट कॉस्ट इन द बुक्स. ओके, सो दैट इज EIR. नाउ जब भी हम इंटरपोलेट करते हैं, इंटरपोलेट का फॉर्मूला कैसे होता है ना, EIR के केस में लोअर रेट जो भी आया प्लस नाउ इन द ब्रैकेट जो भी लोअर रेट का अमाउंट है माइनस जो एक्चुअल में फेयर वैल्यू है जो तुम्हें पता है, डिवाइडेड बाय लोअर रेट अमाउंट माइनस हायर रेट अमाउंट इनटू द डिफरेंस इन बोथ द रेट्स, दैट इज योर लोअर रेट एंड हायर रेट. ये है इंटरपोलेशन का फॉर्मूला. देन यू गेट द होल EIR इंटरपोलेट करके यू विल गेट द EIR. नाउ अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है ना, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को PNL में नहीं डालते हैं. इन दिस केस हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी काइंड ऑफ भी कैपिटलाइज इट. सो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे मैं डे 1 में क्या कर रही हूँ, मैं आउटफ्लो कैलकुलेट कर रही हूँ, राइट. तो अगर मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो मेरा मतलब पैसे मेरे को 10 लाख आए बट 5,000 तो मुझे पे करना पड़ेगा कॉस्ट के लिए, तो इसलिए मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी से सब्ट्रैक्ट करती हूँ. एंड असेट के केस में मैं ऐड करती हूँ. असेट के केस में मैं ऐड क्यों करती हूँ, जैसे कि मेरा PPE हो गया, ठीक है, PPE में कुछ भी कॉस्ट आया तो वो ऐड होता रहता है. बेसिकली कॉस्ट इज वॉट योर डेबिट बैलेंस, राइट. सो डेबिट बैलेंस एंड असेट इज ऑल्सो माई डेबिट बैलेंस, सो ऐड. एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज माई क्रेडिट बैलेंस, सो इसलिए उसमें सब्ट्रैक्ट करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इफेक्ट मैं ऊपर दे देती हूँ मेरे कैश फ्लोज में. एंड एट द सेम टाइम जो मेरा स्टेप 2 है जिसमें मैं फेयर वैल्यू कंप्यूट कर रही हूँ, उसमें भी मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला अमाउंट आएगा. ओके, नाउ ऑल दिस इज़ फाइन. अच्छे से देखना कि इंटरेस्ट परसेंटेज कौन सा है, क्या परसेंटेज है, क्या ड्यूरेशन का है, मंथली है या वटेवर. अगर बाई चांस तुम लोग को बोला हो कि प्रिंसिपल रीपेमेंट्स भी है तो पूरा कैश फ्लो का भी एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा. यू नो, कैश फ्लो का टेबल बनेगा एक पूरा LAT जैसा कैश फ्लो का. बट कैश फ्लो का टेबल क्या होता है, कैश फ्लो का टेबल पे जो भी होता है इस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, मतलब तुम्हारा जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर फेस वैल्यू. जो तुम्हारा इंटरेस्ट है विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट. वर्सेस जो LAT टेबल है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो LAT का ओपनिंग बैलेंस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फेयर वैल्यू दैट यू कंप्यूटेड इन स्टेप 2, एंड योर इंटरेस्ट वुड एक्चुअली बी द EIR दैट यू कंप्यूटेड इन स्टेप 3, एंड देन फाइनली स्टेप 4 में तुम LAT टेबल बना रहे हो. ओके, नाउ वी आर डूइंग ऑफ दोज केसेस जहाँ पे वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली हो गई, या फिर लेवल 1 इनपुट बोला है, या फिर CFI बोला है. वो केस में माई फेयर वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, आई विल हैव टू कंप्यूट द फेयर वैल्यू. अब ये केसेस में ना यूजुअली EIR दिया होता है, तो मैं फेयर वैल्यू कैसे कंप्यूट करती हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस एट रेट EIR. तो जो EIR दिया है उसके बेसिस पे मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे मिल जाएगा फेयर वैल्यू होना चाहिए जो. वर्सेस अगर मैं देखूँ तो मेरा डे 1 का कैश फ्लो तो अलग है एंड फेयर वैल्यू जो मैंने कंप्यूट किया ना दैट इज़ डिफरेंट. तो अब ये दोनों का जो भी डिफरेंस वाला पार्ट होता है ना, दैट डिफरेंस हाउ द अकाउंटिंग शुड हैपन विल डिपेंड अपॉन तुम्हारा क्या पार्ट है. अगर तुम्हारा रिलेशनशिप जैसा है तो फिर अगर लेसी लेसोर का लेट्स से रिलेशन है, देन इन दैट केस एडवांस ROU टाइप हो सकता है, ROU असेट जैसा क्रिएट हो रहा है वैसा टाइप का. या फिर अगर लेट्स से तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो एडवांस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तुम लोग ने पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस जैसा हो सकता है. अगर तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है, देन यू सी कि होल्डिंग ने लोन दिया है सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने लोन दिया है होल्डिंग को. अगर होल्डिंग ने लोन दिया है सब्सिडरी को, देन इन दैट केस जो भी रिलेशन है वो होल्डिंग वाले की बुक्स में ना इट वुड बी लाइक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एंड इन सब्सिडरी बुक्स इट वुड बी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय होल्डिंग कंपनी. बट अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को लोन दिया है सब्सिडरी ने, तो फिर सब्सिडरी के बुक्स में आएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड होल्डिंग के बुक्स में आएगा डिविडेंड इनकम. एंड अगर मेरा लेवल 1 इनपुट है ना, देन इन दैट केस ये डिफरेंस अमाउंट जो भी है डायरेक्टली PNL में डाल दो. एंड CFI का हम अब देखेंगे CFI में क्या होता है. ओके, अगर प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो गेटिंग रीपेड पर एनम, देन जो भी बाइफरकेट है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट उसको करंट नॉन करंट में करो. बट अगर प्रिंसिपल फुल्ली एकदम एंड में रीपे हो रहा है तो फिर इन दैट केस सब कुछ नॉन करंट में जाएगा. फाइन. अगर रिलेशनशिप में गवर्नमेंट हेल्पिंग होता है तो एक्चुअली गवर्नमेंट ग्रांट जैसा यू हैव टू क्रिएट एंड उसका अकाउंटिंग तुम इंडिया 20 में कर दो. नाउ मूविंग ऑन टू CFI.
अब CFI का हम लोग ने वो पार्ट देखा कि जब भी इक्विटी पता है, F2F टेस्ट मीट हो गया, देन मैं CFI में आती हूँ. बट देयर इज़ वन मोर थिंग. ओके, जब भी तुम्हारा रिलेशन होता है तो यू एंड अप गिविंग समथिंग एट अ लोअर रेट. लाइक लेट्स से इन जनरल मार्केट रेट 10% है, बट जस्ट बिकॉज आई नो यू, हमारा पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन है, आई एम गिविंग यू लोन एट 8%. सो इन दैट केस 2% का सेविंग्स एंड इंटरेस्ट हुआ. ऐसा कुछ सेविंग्स हुआ ना, देन इवन दैट सेविंग्स वाला पार्ट इज इक्विटी. सो अगर इन जनरल सब FL हो बट ये सेविंग जैसा कुछ आ गया तो इक्विटी बन गया, तो CFI वो इंस्ट्रूमेंट बन गया. सो बी वेरी कॉशियस व्हेन यू डूइंग दिस. अब CFI के केस में भी सेम होता है. जो कैश फ्लो होता है, राइट, जो कैश फ्लो होता है ना, यू ओनली टेक कैश फ्लोज ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. ठीक है, इक्विटी का उठा के मत ले लेना वहाँ पे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का लेना. जो भी फर्स्ट डे का कैश फ्लो होता है ना, जो भी इनफ्लो होगा, क्योंकि हम लोग ने लाइबिलिटी, हम लोग ने बॉन्ड इशू किया होगा, तो जो भी इनफ्लो होगा वो पूरा मेरा इनफ्लो जाएगा ऑन डे 1. ओके, ऐसा मत करना कि फर्स्ट डे को मैं बाइफरकेट करी हूँ इनटू FL एंड इक्विटी, वैसा नहीं होता. पूरा मेरा इनफ्लो डे 1 में जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, एंड मे बी इक्विटी वाला पोर्शन होगा तो मेरा लास्ट डे का आउटफ्लो वाला पार्ट नहीं आएगा, वो इक्विटी कवर कर लेगा. सो कैश फ्लोज मेक श्योर कि सिर्फ FL का पार्ट हो, एंड डे 1 का कैश फ्लो डे 1 के कैश फ्लो में ही आएगा. ओके, द अदर थिंग इज फेयर वैल्यू जो होता है वो भी हम सिर्फ FL का निकालेंगे जिसके कैश फ्लोज ऊपर लिखे हैं, एंड दैट फेयर वैल्यू वुड बी कंप्यूटेड एज पर EIR. इन दिस केस इट इज़ वन ऑफ योर 3 कंडीशंस, सो इसलिए यू आर कंप्यूटिंग द फेयर वैल्यू. अब जो डिफरेंस आता है बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन प्राइस, ओके, दिस डिफरेंस विल एक्चुअली गो टू इक्विटी. ओके, ये जो डिफरेंस है वो इक्विटी कंपोनेंट है. देन EIR जो भी तुम्हारा मार्केट रेट है इज योर EIR, एंड देन तुम LAT बनाओगे, एंड अगेन जो LAT बना रहे हो वो सिर्फ FL का बना रहे हो. इक्विटी का कोई LAT कुछ नहीं बनेगा. इक्विटी सिर्फ जो डे 1 पे रिकग्नाइज हो गई वो हो गई, फिर कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें, जैसे है वैसे का वैसा ही रहेगा. फिर उसके बाद तुम देखो, अगर इक्विटी शेयर्स दे रहे हो तो जो भी तुम्हारा इक्विटी कंपोनेंट है, FL कंपोनेंट है, उसको रिवर्स करके टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर देना. सिंपल है, ठीक है. एंड अगर बाई चांस तुम कैश दे रहे हो तो फिर रिवर्स करके टू बैंक कर देना. इजी पीजी. नाउ अनदर थिंग इज, इसमें अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गया, ठीक है, अगर इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आया, देन इन दैट केस इट्स अ लिटिल डिफरेंट. अपन यूजुअली क्या करते थे, मैं डायरेक्टली डे 1 के प्राइस में माइनस कर देती थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट. बट ये वाले केस में ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी कैश फ्लोज कर रहे हैं एंड जो भी मैं फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ वो सिर्फ मैं FL का रिकॉर्ड कर रही हूँ, इक्विटी का रिकॉर्ड ही नहीं कर रही. तो मैं पूरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ FL में बाइफरकेट करूँ एंड इक्विटी को प्रोपोर्शनेट ना करूँ, देन दैट वुड नॉट बी राइट, करेक्ट. सो इसलिए पहले मैं स्टेप 1 जो कैश फ्लो है उसमें आई एम इग्नोरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट. स्टेप 2 जो फेयर वैल्यू है उसमें ऑल्सो आई एम इग्नोरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट. स्टेप 3 जो डिफरेंस है बिटवीन द फेयर वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन प्राइस, जो इक्विटी पार्ट मिलेगा मुझे, उसमें ऑल्सो आई एम इग्नोरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. अब ये मेरे पास आ गया, राइट, फेयर वैल्यू ऑफ FL एंड इक्विटी without giving effect of transaction cost. Now I have that amount. अब मैं जो है वो मेरा transaction cost लूँगी and I'll proportionate it between these two values. जो मेरा step 2 का fair value मिला मेरे को FL का, and जो मेरे को step 3 का equity value मिला, मैं उन लोग के basis पे उसको bifurcate करूँगी the transaction cost, and transaction cost would be subtracted. Okay, जो भी bifurcate करके मुझे amount मिला it would be subtracted from FL, subtracted from equity, वैसा होगा. देन EIR आएगा. EIR के केस में, अब जो EIR है बाई चांस कंप्यूट करना हो, EIR के केस में मेक श्योर कि अब तुम लोग जो फेयर वैल्यू ले रहे हो ना, दैट इज आफ्टर योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला फेयर वैल्यू, बिकॉज EIR हैज़ टू अकाउंट फॉर योर एवरीथिंग, योर कूपन, योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, योर डिस्काउंट प्रीमियम, एवरीथिंग. तो इन दिस केस अब तू जो फेयर वैल्यू ले रही है दैट इज योर रिवाइज्ड फेयर वैल्यू विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट. फिर EIR करो, इंटरपोलेशन करो, जैसे होता है वैसे का वैसे करो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. जस्ट एक बार याद रखना कि इसको बाइफरकेट करना है. LAT भी फिर LAT विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम योर फेयर वैल्यू विथ इफेक्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एंड LAT भी तेरा सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी का बनेगा, इक्विटी का LAT नहीं बनता है. ओके, दिस इज़ ऑल फाइन. अगर अर्ली सेटलमेंट का या वैसा क्वेश्चन आए तो जस्ट इंश्योर कि जो भी डेट पे सेटलमेंट हुआ है उसके एक दिन पहले तक तुझे कोई आइडिया नहीं थी, तो स्टार्टिंग का अकाउंटिंग वैसे ही करो जैसे होता है. LAT भी बना लो, अगर 5 साल है, 3rd ईयर में हो रहा है अर्ली सेटलमेंट, तो 2 years का वैसे ही बना लो जैसे बनता है. फिर तुम लोग देखो कि जब ये डिसीजन हुआ देन देखो कि एक्चुअल में क्या चीज़ होनी चाहिए. ओके, अब अर्ली सेटलमेंट के केस में
अब जब हमें नए दिन पे रीपर्चेस करना है तो हमें ना रीपर्चेस डे का फेयर वैल्यू दिया है. अब हम क्या करते हैं ना, हमें क्या करना है, रीपर्चेस डे का फेयर वैल्यू. नाउ दिस फेयर वैल्यू वी हैव टू एक्चुअली बाइफर्केट इट इनटू इक्विटी एंड योर एफएल का कैसे बाइफर्केट करेंगे, वील एक्चुअली सी द फेयर वैल्यू ऑफ एफएल ऑन द डेट ऑफ परचेज. दैट इज़ लेट्स अगर 2 साल और बाकी रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, तो फिर और 2 साल का जो भी होता है ना उसको मैं डिस्काउंट करूँगी कि फ्यूचर में जो प्रेजेंट वैल्यू है, राइट, मैं फेयर वैल्यू डिस्काउंट कब करती हूँ, आज खड़ी हूँ एंड आज से मैं फ्यूचर का देखूँगी, तो फ्यूचर के 2 साल का कैश फ्लो निकालूंगी एंड वैसे करके मैं फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट ऑफ एफएल निकालूंगी. एंड तो जो भी अमाउंट आया, ठीक है, अगर मुझे लेट्स से ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 525 है, उसमें से मैंने फेयर वैल्यू ऑफ एफएल जो भी आया उतना उसको पूरा दे दिया, जो भी बैलेंस है उसको इक्विटी में डाल दिया. ओके, दैट इज़ हाउ यू डू अर्ली सेटलमेंट का अकाउंटिंग. उसके बाद वी मूव आगे एंड नाउ रिलेशन लेसी लेसर हो गया, ये सब हो गया हमारा. अगर लोन इज़ रीपेबल ऑन डिमांड, या दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, अगर लोन इज़ रीपेबल ऑन डिमांड, ओके, देन इन दैट केस तुम अज्यूम करते हो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा डिटेल कुछ होती नहीं है, देन वी अज्यूम दैट फेयर वैल्यू इज इक्वल टू योर ट्रांजैक्शन प्राइस इवन दो पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. एंड अगर लोन ऐसा बोला उन लोगों ने कि लोन इज़ रीपेबल व्हेन सब्सिडरी हैज़ फंड, देन इन दैट केस ICAI बोलता है कि भाई ऐसा सब नहीं चलेगा, तू एस्टिमेट कर बाद में चेंज कर, दैट इज़ फाइन, बट यू एस्टिमेट द मेजरमेंट पीरियड के रीपेमेंट का कब आएगा एंड फेयर वैल्यू अकॉर्डिंगली तो एस्टिमेट करके तू फाइंड आउट कर कि व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट फेयर वैल्यू. सो दिस इज़ द होल पार्ट ऑफ योर बेसिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. उसके बाद आता है डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट स्पेसिफिकली. अब इसमें भी हमारे पास 2-3 केसेस है कुछ अलग अलग. पहले तो एक बात देखो, अगर बाई चांस ऐसा लिखा है कि आई एम गिविंग द इंटरेस्ट पोर्शन, आई एम शेयरिंग 10% ऑफ माई इंटरेस्ट, आई एम शेयरिंग 20% ऑफ माई प्रिंसिपल, अगर ऐसे दिया है, सिर्फ ऐसे बोला है, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं बोला था, जस्ट डायरेक्टली सेइंग कि मैं 10% ऑफ प्रिंसिपल शेयर कर रही हूँ, या आई एम शेयरिंग माई एंटायर प्रिंसिपल विथ यू बट इंटरेस्ट आई विल बी ऑन इट, ऐसा बोला है ना, देन इन दैट केस दैट इज़ योर केस ए. एंड इन दैट केस हम क्या करते हैं ना, पार्शियल डी रिकग्निशन वाली अकाउंटिंग करते हैं. पार्शियल डी रिकग्निशन अकाउंटिंग में कैसा होता है, पार्शियल डी रिकग्नाइज करो, जो भी तुम बेच रहे हो ना उसको तुम लोग डी रिकग्नाइज करो एट कैरिंग वैल्यू, एंड जो भी तुम्हारा डिफरेंस है, ओके, एक सेकंड मैंने क्वेश्चन देख लेते हैं. हाँ, जो क्वेश्चन में उन लोग ने क्या बोला, हमें टोटल फेयर वैल्यू दी है एंटिटी की, एंड उन लोग ने बोला है कि प्रिंसिपल का फेयर वैल्यू इतना है, इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू इतना है, एंड जो भी सर्विस फी असेट भी होता है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम योर पार्ट रिटेल्ड. सो हमें पता है कि व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द पार्ट रिटेन एंड वी नो व्हाट इज़ द टोटल फेयर वैल्यू. They have said that some percentage of your principal and some percentage of your interest you will be giving up. They have not used the word first या last या something like that. They have just told you the percentage. So in that case हम क्या करेंगे, हमारे पास proportionate है, fair value total है and retained part की fair value है, तो balance would be the fair value of the part that you are de-recognizing. तो अब ये de-recognizing वाली भी fair value मिल जाएगी. फिर उसके बाद ये fair value के proportion में हम carrying amount को bifurcate करेंगे. Okay, so now the carrying amount is also bifurcated between part retained and part derecognized. अब जो भी part derecognized है, right, उसको carrying amount पे ही तुम बाहर करोगे. जो derecognized वाला part है वो carrying amount पे बाहर होगा. बैंक से जितना भी पैसा आ रहा है बैलेंस विल गो टू P&L. अगर बैलेंस शीट बनाने बोली है आफ्टर दिस derecognition तो इंश्योर करो कि तुम लोग ने जो भी कैरिंग अमाउंट का रिटेन पार्ट में प्रोपोर्शनेट किया है उसको फर्दर प्रोपोर्शनेट कर दो बिटवीन द कंपोनेंट्स का फेयर वैल्यू की. इतना प्रिंसिपल रिटेन हुआ वर्सेस इतना इंटरेस्ट रिटेन हुआ, उसको और प्रोपोर्शनेट करो जैसे करते हो. एंड अगर बाई चांस फर्स्ट एंड लास्ट वाला बोला है देन इन दैट केस हम फुल डी-रिकग्नाइज करते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं ना, हमारा सब कुछ इवन द पार्ट दैट यू आर रिटेनिंग ना, टेक्निकली एवरीथिंग विल बी डी-रिकग्नाइज्ड एट कैरिंग वैल्यू, एंड फिर जो भी बैलेंस बचता है वो P&L में डाल दो. फिर तुम लोग ना वापस रिकग्नाइज करोगे. So basically you will de-recognize everything and then you will recognize stuff that is your principal or whatever the part that you are actually retaining, उसको तुम लोग re-recognize करो at fair value. So de-recognize everything at carrying amount, re-recognize everything at fair value, and then part the balance would go in P&L versus first case में carrying amount पे ही खेल रहे थे. फिर हमारे पास बिल डिस्काउंटिंग है. बिल डिस्काउंटिंग बेसिकली यू कंसिडर इट एज
लोन रादर देन डिस्काउंट। तो उसमें हम कंसिडर जो भी बैंक से हमें पैसे आया वो पहले बैंक टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी करेंगे। जो भी टेक्निकली तुम्हारा डिस्काउंट का पार्ट है दैट वुड बी योर इंटरेस्ट टू द लोन फ्रॉम बैंक, एंड देन फाइनली जब पैसे आ जाएंगे तभी हम करेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू योर बिल रिसीवेबल। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फैक्टरिंग, जिसमें हम हमारे डेटर्स का कोई और पैसे लेके आएगा वैसा करते हैं। अब उसमें अगर वो लोग बोल रहे हैं फैक्टरिंग विद फुल रिकोर्स, उसका मतलब कि रिस्क नहीं सोल्ड हुई है, रिस्क अपने पास ही है, बस वो जाके पैसे लेके आएगा वैसे टाइप का हो गया। सो इन दैट केस अगर बाई चांस डेटर डिफ़ॉल्ट किया तो हमारे पास रिस्क है, तो जैसे बिल डिस्काउंटिंग का कहते हैं वैसे ही करो। अगर फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, उसका मतलब हम लोग ने रिस्क भी उसको ट्रांसफ़र कर दिया कि अगर बाई चांस डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा देन इट इज़ अप टू दी अदर पार्टी, मेरे को कुछ बेयर नहीं करना है। तो अगर विदाउट रिकोर्स वाला होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, टू डेटर कर दो, जो भी बैलेंस हुआ वो PNL में डाल देंगे, तो फिर FL जैसा कुछ रिकग्नाइज नहीं करते। ओके नाउ अगर पार्शियल रिकोर्स हुआ ना तो फिर एक अलग चीज़ आ जाती है। पार्शियल रिकोर्स में फर्स्ट डे तो क्या करते हैं हम, डी रिकग्नाइज द डेटर का अमाउंट दैट वट एवर यू हैव। देन अब तेरे पास कैसा बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तेरे पास 15,000 की लाइबिलिटी है या 20,000 की लाइबिलिटी है। ओके लेट्स से यू स्टिल हैव 20,000 का लाइबिलिटी अगर बाई चांस द पर्सन डिफॉल्ट्स, तो इन दैट केस यू रिकॉर्ड एन एंट्री कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट इन असेट अकाउंट डेबिट टू एसोसिएटेड लाइबिलिटी अकाउंट दैट इज़ 20,000, एंड उसका फेयर वैल्यू भी दिया होगा कि अकॉर्डिंग टू यू द फेयर वैल्यू ऑफ दैट लाइबिलिटी इज कमिंग टू 5,000, तो PNL टू एसोसिएट लाइबिलिटी 5,000। अब इन दैट केस तुम्हारी एसोसिएट लाइबिलिटी टेक्निकली 25,000 हो गई, बट अगर देखेंगे ना तो सामने तुम लोग ने एक असेट भी क्रिएट किया है 20,000 का, तो 20,000 तो ऐसे ही नॉक ऑफ हो रहा है। तुम्हारा PNL में 5,000 का इम्पैक्ट जाता है जो तुम्हारा फेयर वैल्यू होता है, एंड देन फाइनली जब भी जितना भी उन लोग ने पैसे पे किए उसके हिसाब से तुम एंट्री मारो, तुम्हारे सब बैलेंसेस नील विल कर दो। अब ये वाले केस में बट यू हैव टू आस्क समवन कि ये जो है मैं फर्स्ट डे कोई जो फेयर वैल्यू की एंट्री करती हूँ PNL टू एसोसिएट लाइबिलिटी, इज दैट फाइन कि मैं कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट में ऐड करूँ इंस्टेड ऑफ PNL, दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू कन्फर्म। एनीवे दैट पार्ट इज डन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इज़ बेसिकली तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है क्योंकि तुम आइदर यू आर नॉट एबल टू पे, सो यू वांट टू मॉडिफाई द टर्म्स, यू वांट टू से कि यार हमारा टर्म बढ़ा दो या फिर इंटरेस्ट रेट चेंज कर दो, वैसा कुछ कर दो। ओके नाउ मॉडिफिकेशन हम पहले बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज यू विल चेक कि जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, इट इज़ सब्सटैंशियल है कि नहीं। पहले तो जब तक तुम्हारा डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का डेट है तब तक तो तुम नॉर्मल जैसे करते हो वैसे करो। अब मॉडिफिकेशन के दिन यू विल चेक कि तुम्हारा अमाउंट जो मॉडिफाई हो रहा है वो सब्सटैंशियल है कि नहीं। वो चेक कैसे करते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ FL ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। जो भी कैरिंग अमाउंट है बेसिकली और LAT का क्लोजिंग बैलेंस जो भी आ रहा होगा वो दिन का, दैट इज योर कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ FL माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर रिवाइज कैश फ्लोज एट ओल्ड EIR। यहाँ पे ध्यान रखना एट ओल्ड EIR है, एंड रिवाइज कैश फ्लोज इज बेसिकली मॉडिफिकेशन के बाद जो भी फ्यूचर में चेंज हो रहा है। सो मॉडिफाइड कैश फ्लोज ले रहे हैं, रिवाइज कैश फ्लो ले रहे हैं, लेकिन जो EIR है दैट वुड बी द ओल्ड EIR। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। डिवाइड बाय अगेन कैरिंग अमाउंट ऑफ FL, इसका परसेंटेज निकालो। इफ़ इट इज़ 10% या फिर मोर देन 10% तुम्हारा सब्सटैंशियल, अगर लेस देन 10% है तो फिर नॉट सब्सटैंशियल है, ठीक है। नाउ लेट्स से योर दिस थिंग इज लेस देन 10%, ओके, लेट्स से योर दिस थिंग इज नॉट सब्सटैंशियल। अब नॉट सब्सटैंशियल ना, देन इन दैट केस नाउ अगर हमारा मॉडिफिकेशन सब्सटैंशियल नहीं होता है देन इन दैट केस हम क्या करते हैं ना, हम कोई नया FL कैलकुलेट नहीं करते। जो ऑलरेडी पुराना FL है ना उसमें बस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडजस्ट कर दो, एंड हाँ तुम्हारा FL थोड़ा एडजस्ट हुआ है राइट ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, सो तुम्हारा EIR चेंज हो जाएगा बिकॉज नाउ योर EIR ऑलवेज हैज़ टू टेक इन टू अकाउंट व्हाटएवर तुम्हारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कुछ हुआ है। So तुम्हारा FL would be just adjusted to the extent of that transaction cost, okay, and तुम्हारा and one more thing, हाँ तुम्हारा जो भी FL है ना that would be basically, so ये केस में हमारा जो भी transaction cost आया in the question वो हम लोग ने directly adjust कर दिया। इसमें just ensure कि तुम वो जो modification वाला step है उसमें you have to use old EIR। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी जो भी तुम्हारा FL होता है बेसिकली तुम्हारा जो भी कैरिंग अमाउंट होता है ना FL का
उसमें तुम लोग बस ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाला पार्ट एडजस्ट कर रहे हो, या तुम्हारा नया आएगा एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारा नया LAT बनेगा। now अगर तुम्हारा सब्सटैंशियल होता है ना, देन इन दैट केस इट इज़ लाइक तुम्हें सब कुछ डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो पहले तो तुम लोग देखोगे इफ़ इट इज़ 10% या फिर मोर देन 10%, ओके, इन दैट केस यू विल हैव टू डी रिकग्नाइज एवरीथिंग। देन तुम्हारा जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ओनली इन दिस केस तुम्हारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली PNL में जाएगा, इट विल नॉट कम इन योर फेयर वैल्यू। डी रिकग्नाइज कर दो, फिर तुम्हारा नया रिकग्नाइज करो, जो भी तुम्हारा नया FL वेफल जितना बन रहा है, इट इज़ लाइक तुम लोग सब निकाल रहे हो, फिर वापस सब नया कैलकुलेट करके लेके आ रहे हो एंड LAT बनाओ, ओके। तुम्हारा नया FL वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू EIR। यूजुअली इसमें नया EIR देना होना चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इधर मत ऐड करना, वो तुम्हारे PNL में चला जाएगा, ओके। नाउ दिस इज़ फाइन। अगर लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दैट इज़ तुम्हारा फाइनेंशियल असेट हो, ओके, देन इन दैट केस स्टेप्स आर लिटिल डिफरेंट, नॉट अ वेरी लॉट ऑफ डिफरेंस, बट ठीक है। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा आएगा कैश फ्लोज, जो तुम जैसे जा रहे हो। स्टेप 2 आएगा तुम्हारा LAT हो जाएगा, LAT तक जाओ जब तक तुम्हारा मॉडिफिकेशन नहीं आता। फिर जब तुम्हारा मॉडिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, वो डेट का तुम रिवाइज्ड कैश फ्लोज निकालो। अब जो भी रिवाइज कैश फ्लोज है, यू कंपेयर इट, ठीक है, विथ योर ओल्ड वाला जो भी तुम्हारा आ रहा था फेयर वैल्यू डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का, जो भी आ रहा था उसके हिसाब से तुम लोग एक एंट्री पास करके फाइनेंशियल असेट को कम कर दो, जितना भी तुम्हें कम करना हो। EIR जो भी होगा, हाँ, इन दैट केस ना EIR डज नॉट चेंज। वन थिंग दैट इज़ यूनिक ओवर योर इज़ योर EIR डज नॉट चेंज, योर EIR रिमेन्स ओल्ड ओनली, ठीक है। एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा EIR नहीं चेंज होगा, बस तुम्हारा बेसिकली जो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट है वो तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा LAT चेंज हो गया। नाउ उसके बाद दिस इज़ ऑल फाइन। अगर तुम्हारा हाँ T1 T2 वो वाला होता है, 2 दिन बाद अगर पैसे आ रहे हैं, तो जो भी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो इन जनरल हमेशा वैसे करते रहो। अब इम्पेयरमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट पहले तो तुम क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल असेट यू कैन आइदर रिकॉर्ड इट एट ACM, FVT, OCI R, FVT, OCI NR या फिर FVTPL। अब इम्पेयरमेंट स्पेसिफिक जो लॉज होता है ना, दैट ऑलवेज गोज टू PNL इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड दैट यू फॉलो। सो टेक्निकली ऑलरेडी FVTPL में सब PNL के थ्रू हो रहा है, तो इम्पेयरमेंट कोई नई चीज़ नहीं होगी, वो उसमें नहीं आएगा। बट बाकी सब केसेस में इंश्योर करो कि PNL के थ्रू जा रहा है तुम्हारा इम्पेयरमेंट जो भी होता है। नाउ अगर फाइनेंशियल असेट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो फिर यूजुअली 12 मंथ्स का ECL करते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट वाला है तो लाइफ टाइम ECL करो। बेसिकली इसमें जितना भी एक्सपेक्टेड तुम लोग को प्रोबेबिलिटी दिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करो। नाउ देयर आर 2 थिंग्स का जिसके वजह से लॉस हो सकता है, वन इज़ ड्यू टू फेयर वैल्यू चेंजेस एंड वन इज़ ड्यू टू इम्पेयरमेंट। अगर तुम जब भी एंट्री कर रहे हो, इम्पेयरमेंट का चेंज जो भी होगा वो PNL में जाएगा, फेयर वैल्यू रिलेटेड चेंज जो भी होगा वो मेरे OCI R में जाएगा, ओके। एंड वन मोर थिंग इज OCI R, ओके, OCI R नॉट NR। अगर OCI R होता है दैट मीन्स OCI reclassifiable है। In that case always remember that at the end of the day you have to reclassify that to PNL. So बाद में तुम लोग को PNL to OCI R करना पड़ेगा to in order to basically reverse entry करके उसको OCI R को close करो in PNL, right? अब आते हैं डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में कैसा है, डेरिवेटिव्स में ऐसा है, उन्होंने बोला कि हमारी करेंसी ये है, हमारी करेंसी हम लोग ने फ्यूचर में कोई तो रेट पे वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर का रेट इतना है, नाउ वी आर स्पेक्यूलेटिंग। अब एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि तुम लोग को फर्स्टली तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डे 1 पे, यूजुअली ये सब के केस में डे 1 पे कोई एंट्री नहीं आती है। फिर तुम्हें बोलते हैं कि डेरिवेटिव अगर एकदम करेंसी वाला है, ठीक है, कोई कमोडिटी वमोडिटी इन्वॉल्व नहीं। करेंसी के केस में तुम्हारे ईयर एंड पे तुम लोग देखते जाओ कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर तुम्हारा प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस है, तो दिस इज़ योर फाइनेंशियल असेट, दिस इज़ योर फेवरेबल पोजीशन। क्रेडिट बैलेंस है तो तुम्हारा ये अनफेवरेबल पोजीशन है, ये लाइबिलिटी है। एंड हाँ, जो भी तुम्हारा गेन या लॉस वो लोग बोल रहे हैं ईयर एंड पे, दैट इज़ अ क्यूमुलेटिव गेन लॉस। तो अगर तुम्हारा अभी गेन है लेकिन लास्ट ईयर लॉस था, तो पहले वो लॉस को रिवर्स करो वो गेन के हिसाब से, एंड देन यू रिकॉर्ड द गेन अमाउंट। सो इट विल बी लाइक वो वाला कंसेप्ट है ये, बट ठीक है, नो बिग डील। देन हाँ, ऑप्शंस में ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं, राइट, कॉल एंड पुट। कॉल इज बेसिकली योर राइट टू बाय एंड पुट इज़ योर राइट टू सेल। अब ये जो राइट होती है दैट इज़ विद द होल्डर। सो इन केस ऑफ पुट देयर इज अ राइट टू सेल, एंड राइट टू सेल किसके पास है, होल्डर। सो इन दैट केस राइटर के पास क्या है, राइटर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू बाय। सिमिलरली कॉल के लिए राइट टू बाय इज विद द होल्डर एंड राइटर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सेल।
बेसिकली राइटर इज़ द दूसरा वाला पर्सन, राइट, तो उसके लिए उल्टा हो जाएगा. तो पुट इज सेल एंड सेल हमेशा होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब एम्बेडेड डेरिवेटिव कैसा होता है ना, उसमें दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली. एक तो तुम कुछ प्रोडक्ट जैसा बाई कर रहे हो एंड दूसरा है तुम करेंसी में खेल रहे हो. एंड इसमें हम देखते हैं क्लोज रिलेशन है कि नहीं है. क्लोजली रिलेटेड नहीं होता है ना, तो फिर तुम सेपरेट अकाउंटिंग कर दो. जैसे कि मैं इंडियन हूँ, मेरे को यूएस से माल लेना है, लेकिन मैं फॉर सम रीज़न मैं देख रही हूँ कि पाउंड से सस्ता पड़ रहा है अगर मैं पाउंड के साथ एक्सचेंज करके कुछ खेलूँ तो इन दैट केस मेरा करेंसी थर्ड करेंसी हो गया, कोई अलग ही करेंसी हो गई. तो इसलिए हम एम्बेडेड डेरिवेटिव, वो मेरा डेरिवेटिव पार्ट आ गया. अब मेरा होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द होल पॉइंट ऑफ सेपरेटिंग दिस इज, तुम जो भी असेट वसेट बाई कर रहे हो ना, तुम उसको फॉरेक्स के लिए खेलो मत, बिकॉज द होल पॉइंट दैट यू आर एक्चुअली एंगेजिंग इन सम तीसरा करेंसी इज कि तुम फ्लक्चुएशन कुछ खेल सको. बट दे आर लाइक ऐसा मत करो. तुम्हारा जो भी असेट है, वी वॉन्ट यू टू रिकॉर्ड दैट असेट एट द एक्चुअल वैल्यू जो वो असेट की होनी चाहिए. तो इसलिए तुम्हारा ना डे 1 पे तो कोई एंट्री नहीं आएगा. एंट्री विल ओनली बी व्हेन यू एक्चुअली परचेजिंग दैट असेट. बट जो भी रेट है ना जब तुम परचेज कर रहे हो, दैट वुड बी द रेट जो डे 1 पे था. मतलब मैंने आज डिसाइड किया कि मैं असेट बाई करूँगी, बट दैट असेट आई एम एक्चुअली बाइंग आफ्टर 6 months. तो मैंने आज देख लिया कि आज की रेट इतनी है, फिर मैंने सब प्लानिंग किया ना. सो दे आर लाइक, जब तुम लोग ने डिसाइड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर आ गई कि तुम अब तुमसे परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो दिन का स्पॉट रेट पे ही तुझे असेट को रिकग्नाइज करना है. सो माई असेट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन आई एक्चुअली बाई इट एंड परचेज इट, बट इट विल बी रिकॉर्डेड एट द रेट जब मैंने एकदम फर्स्ट जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की होगी. ठीक है, अब ये तो ठीक है, ये मेरा होस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सो एंड ये दूसरा पार्ट है मेरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, राइट. अब फर्स्ट डे पे तो कोई एंट्री नहीं आएगी. अब सेकेंड डे पे, ठीक है, जब मेरा 6-5 महीने जब भी है, तभी मैं देखूँगी यार कि मेरा फर्स्ट डे पे मुझे इतने में मिल रहा था. देख, फर्स्ट डे का जो भी पेबल है ना, वो मैंने टेक्निकली मेरे असेट पे तो रिकग्नाइज कर दिया. तो अभी मेरा जो भी फॉरेक्स का गेन या फिर लॉस जो भी है फ्रॉम दैट डे 1 टिल द डेट आई एम एक्चुअली पेइंग, वो मेरा फॉरेक्स का जो भी होगा वो मेरे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. सो वो मेरा PNL टू DFL हो सकता है, या फिर DFA टू PNL भी हो सकता है. इट कैन बी गेन या फिर इट कैन बी लॉस ऑल्सो. एंड फिर वो अमाउंट मेरे नेट पेबल से एडजस्ट होता है. ठीक है, द होल पॉइंट बेसिकली रिमेंबर कि 2 कॉन्ट्रैक्ट है. एक कॉन्ट्रैक्ट में मैं असेट रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो डेट पे मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही हूँ वो डेट का रेट, बट इट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन आई एम एक्चुअली बाइंग इट. सो उतने पार्ट का तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, असेट और पेबल. अब मेरे को बैलेंस पार्ट का देखना है ना, तो बैलेंस पार्ट जो भी है वो मेरा फॉरेक्स के वजह से हो रहा है, उसकी मैं सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री करूँगी, विच विल बी PNL टू DFL या फिर DFA टू PNL. एंड देन वो जो भी DFA या DFL है, दैट आई क्लोज विद द पेबल अमाउंट. सो मेरा पेबल वुड एक्चुअली बी जो मेरा एकदम फ्यूचर वाला करेंसी है तभी पेबल होगा. लेकिन द होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि मेरा असेट ओवर स्टेट या अंडर स्टेट ना हो. दैट इज एम्बेडेड डेरिवेटिव. ओके, वेरी गुड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ कंसेप्ट. अब हेज अकाउंटिंग है. हेज अकाउंटिंग में ऐसा है कि एम्बेडेड डेरिवेटिव में कैसा ना कि यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम वन एंड देन तू कोई तीसरी करेंसी में डील कर रही है एंड तू एक्चुअल में कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर रही है खुद को डे 1 पे. वर्सेस हेज अकाउंटिंग में पहले तो तू ऐसा नहीं है कि तू कोई तीसरी करेंसी में डील कर रही है. यूजुअली यू आर डीलिंग इन योर ओनली करेंसी, जो तुम्हारी करेंसी इन्वॉल्व है. एंड तुम ना डे 1 पे प्रोटेक्ट कर दे रहे हो खुद को कि डे 1 पे देख रहे हो कि 3 साल बाद, जब 6 महीने बाद जब भी मुझे पे करना होगा उसकी प्राइस कितनी है, और मैं हेज कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देती हूँ ताकि मेरा ज़्यादा नुकसान ना हो. ठीक है, नाउ दैट इज़ द केस ऑफ हेजिंग. इसका अकाउंटिंग आई विल हैव टू लर्न फ्रॉम समवन. आई डोंट नो द अकाउंटिंग ऑफ हेजिंग. इसमें हेजिंग का कुछ भी रीमेजरमेंट होता है इज़ फ्रॉम OCI. एंड अगर एम्बेडेड डेरिवेटिव का कुछ भी होता है उसका रीमेजरमेंट इज़ फ्रॉम PNL. और द लास्ट कंसेप्ट इज़ फाइनेंशियल गारंटी. फाइनेंशियल गारंटी के केस में SME को याद रखना. फाइनेंशियल गारंटी क्या होता है? मैं तुझे लोन, यूजुअली बैंक लोन देता तो 10% पे देता, लेकिन मैंने गारंटी दिया है ना तेरे लोन के लिए, इसलिए तुझे 8% में दे रहा है. तो 2% का काइंड ऑफ सेविंग्स इन इंटरेस्ट जैसा हो गया. अब ये जो 2% का जो भी बेनिफिट मिला है ना, ये बेनिफिट को हम फेयर वैल्यू करेंगे. एंड फेयर वैल्यू कैसे करेंगे? मतलब पहले डिस्काउंट करके वो प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे, लेकिन जो डिस्काउंटिंग रेट होगी वुड बी एक्चुअली द रेट जो मार्केट में चल रही है. दैट इज़ योर डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज़ योर 10% रेट. बट मेरे वजह से तुझे 8% मिला, 2% का डिस्काउंट मिला. सो 2% तेरे को बेनिफिट मिला, और ये 2% का बेनिफिट निकालो कितना आता है एंड उसको डिस्काउंट करो बाय मार्केट रेट विच इज़ 10%.
फिर ये जो भी अमाउंट आया दैट इज़ बेसिकली माई फिनेंशियल गारंटी का अमाउंट, जो फिनेंशियल लाइबिलिटी है इन अ वे फॉर मी, जिसको मैं रिकॉर्ड करूँगी PNL टू फिनेंशियल गारंटी। एंड अगर बाई चांस मेरा कोई रिलेशन हो तो फिर वो रिलेशन के जैसे मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, जैसे कि अगर मैं पेरेंट हूँ तो मैं बोल सकती हूँ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू फिनेंशियल गारंटी। एंड कोई कमीशन वमीशन मिल रहा है तो बैंक टू PNL वैसे भी डाल दो। एंड अब अकाउंटिंग कैसा होता है ना, एवरी ईयर एंड पे आई विल हैव टू री मेजर एंड सी कि मेरा फिनेंशियल गारंटी का कैसा चल रहा है, जो भी चल रहा है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब फिनेंशियल गारंटी ना एक ऐसी चीज़ है कि इसमें तू एक्चुअल में तो इंटरेस्ट दे नहीं रही है, तो जो भी LAT बना रही है ना इसमें, LAT इंटरेस्ट EIR की वजह से एंड ऑल ऑफ दैट इज़ ऑल प्योरली नोशनल, बिकॉज एक्चुअल में यू डोंट हैव टू गिव इंटरेस्ट, तेरी तो कोई लाइबिलिटी भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस तेरे ऊपर आ जाए, बट कंजर्वेटिव बेसिस पे वी आर रिकॉर्डिंग स्टफ। सो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आती है इसमें कैसा होता है ना, ईयर एंड पे हम देखते हैं कि LAT का टेबल बनाओ, उसकी एंट्री मत पास करो। अब वो टेबल बना के देखो कि टेबल के हिसाब से तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए वर्सेस तुम्हारा जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है इनटू डिफॉल्ट का रेट तुम लोग को क्या लगता है ऑन दैट डेट। मतलब लेट्स से मेरी फिनेंशियल गारंटी है, गारंटी का अमाउंट 100 है, अब मेरा LAT के हिसाब से 85 का अमाउंट आ रहा है, ठीक है, एंड मेरा जो प्रिंसिपल इनटू प्रोबेबिलिटी करके करूँ तो मेरा आई थिंक 78 जितना डिफॉल्ट का अमाउंट आ रहा है। तो अभी मैं 100 रुपये की लाइबिलिटी क्यों ही रखूँ मेरे बुक्स में, मैं देखती हूँ कि इसमें 75 है और इसमें 80 जितना है, तो दोनों में से हायर भी अगर मैं करूँ तो भी 80 जितना लग रहा है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 20 का निकाल देती हूँ ना मेरे बुक्स में से, 80 का रखती हूँ। सो वैसे करके हम फिनेंशियल गारंटी टू PNL करके वैसे करके हम राइट ऑफ करते हैं। So basically we are not recording interest and everything at your end, you are preparing LAT only to compare it, you compare both the entries and देखो कि कौन सा हायर है, एंड वैसे करके तुम्हारा वो वैल्यू पे लेके आ जाओ फिनेंशियल गारंटी को, एंड तुम्हारा जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको PNL में डालते जाओ। ओके, दैट इज़ हाउ यू डू फिनेंशियल गारंटी, एंड विद दिस वी आर डन with financial instruments. The only doubt part that remains is hedge accounting, which I need to confirm with someone. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का वो डेरिवेटिव एंड हेज वाला पार्ट। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 118 ये क्या बोलता है कि आप लोग ने अग्री किया था टू परचेज $20,000 फ्रॉम द बैंक ऑन 1st of January 2021 एंड यू विल बी परचेजिंग $20,000 ऑन 31st of December 2021 एट अ रेट ऑफ 68 रुपीज़। मतलब आफ्टर अ ईयर यू विल बी परचेसिंग 68 रुपीज़ पे लॉक करके रखा है। In general, the financial statements that you are preparing is prepared on quarterly basis, and वो लोग बोल रहे हैं कि आप मार्क टू मार्केट करते हो लॉसेस को 31st March 2021, 30th June 2021, 30th September 2021 एंड 31st December 2021, ये 4 क्वार्टर एंडिंग्स आएंगे। अब सबसे पहले 31st March 2021 को दे आर सेइंग कि 25,000 नेगेटिव में हो। नाउ इन जनरल इफ़ यू सी तो वी हैव अग्रीड टू परचेज डॉलर, बट और कुछ नहीं बोला कि उसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट था या समथिंग, तो इसलिए एम्बेडेड डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं आता है यहाँ पे। बस दे हैव सेड कि इन फ्यूचर मैं परचेज करने वाली हूँ। अब फ्यूचर में मैं परचेज करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने 1st Jan को तो कोई एंट्री नहीं मारी, बट 31st March मेरे क्वार्टर एंडिंग पे मेरे को मार्क टू मार्केट करना पड़ेगा। तो 25,000 का लॉस हो रहा है, तो इसलिए PNL अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फिर उसके बाद ऑन 30th September 2021 दैट बिकेम टू 15,000। दिस 15,000 इज एक्चुअली द क्यूमुलेटिव अमाउंट। 25,000 का अब 15,000 हो गया, मतलब मेरी लाइबिलिटी 10,000 से कम हो गई। तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू PNL 10,000। फिर उसके बाद 30th September को तो 12,000 पॉजिटिव हो गया, मतलब लाइबिलिटी का जो 15,000 बैलेंस था मेरा क्यूमुलेटिव वो तो चला गया, उसके अलावा 12,000 पॉजिटिव में भी रिकॉर्ड हुआ। तो इसलिए मेरा एंट्री हुआ डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 15,000, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट 12,000 टू PNL 27,000। एंड नाउ फाइनली ऑन 31st of December द एक्चुअल रेट बिकेम 66। मेरा डिसाइडेड रेट क्या था कि मैं 68 में मैं बाई करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं 68 पे $20,000 आई एम गोइंग टू बाई, मतलब 20,000 into 68 which comes to 13,60,000. This is the amount of rupees I have to pay to the person in order to get $20,000. तो इसलिए मेरी एंट्री में 2 बैंक अकाउंट जो आएगा वो होगा 2 बैंक अकाउंट 13,60,000। फिर उसके बाद देख कि तेरा जो भी DFA DFL का बैलेंस है, सो आई नो कि लास्ट बैलेंस मेरा 30th September को मैंने जो किया था उसके हिसाब से मेरा DFA बनता है 12,000 का। तो अब असेट को मैं क्लोज आउट करने के लिए उसको मैं क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ, तो 2 DFA 12,000 आया।
अब इन जनरल मुझे पता है कि अब जो $20,000 मुझे मिल रहा है 31 दिसंबर का उसका एक्चुअल रेट तो 66 रुपीज़ है. सो 20,000 इंटू 66 मतलब 13,20,000 का उसका एक्चुअल वर्थ है. अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैंने मशीनरी बाई किया, वैसा कुछ भी नहीं बोला है. सो इन जनरल ये बस उसने स्पेकुलेशन करके उसने खेला है. उसने देखा कि भाई उसने $20,000 बाई किए, अब वो बेचने जा रहा है सेम चीज़, लेकिन आज वो बेचने जा रहा है तो उसको 66 ही मिल रहा है. उसने 68 में बाई किया, 66 मिल रहा है. सी नेट उसका गेन जो है, सॉरी नेट उसका जो लॉस है वो ₹2 हुआ है. बट फॉर दिस जर्नल एंट्री यू कैन नॉट शो इट डायरेक्टली ₹2 बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द सेटलमेंट डे. सेटलमेंट डे है तो इसलिए उन लोग ने एक्चुअल में दिखाया कि तेरा 13,60,000 आउटफ्लो है एंड 13,20,000 विच इज 20,000 टू 66 रुपीज इज योर इनफ्लो. सो बैंक अकाउंट डेबिट 13,20,000 हुआ, टू DFA 12,000 हुआ, टू बैंक अकाउंट 13,60,000 हुआ, जो भी बैलेंसिंग फिगर हुआ वो PNL आया. सो यहाँ पे वन थिंग विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड इज कि जो लास्ट डे हो रहा है 31 दिसंबर को, वहाँ पे डेबिट में भी बैंक अकाउंट है, क्रेडिट में भी बैंक अकाउंट है. क्रेडिट का बैंक अकाउंट इज द अग्रीड रेट, जो रेट पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं उससे परचेज करूंगी. डेबिट का बैंक अकाउंट है कि मैंने परचेज कर लिया, अब मैं आज ही मार्केट में बेच दे रही हूँ वो डॉलर, तो मेरे को कितना बैलेंस आएगा. नेट ऑफ करके गेन नहीं दिखाना है. ये लास्ट डे है तो बैंक की एंट्री आएगी इसमें. फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 100 ये बोलता है कि 1 जनवरी 2021 एक कंपनी है जो इंडिया की है, दैट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई सोलार पैनल्स फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन UAE आफ्टर 6 months. अपन बैठे हैं 1 जनवरी को एंड आफ्टर 6 months दैट इज ऑन 30th June आई एम गोइंग टू बाई सोलार पैनल्स फ्रॉम अ कंपनी विच इज़ एक्चुअली इन UAE. एंड दोनों का फंक्शनल करेंसी, एक का INR है, दूसरे का दिराम है, लेकिन एक्चुअल में मैंने जो सोलार पैनल का प्राइस फिक्स किया है वो डॉलर में, विच इज़ थर्ड करेंसी ऑल टुगेदर. तो यूजुअली जब एकदम अलग ही करेंसी आ जाती है, जो दोनों कोई भी कंट्री की सेम करेंसी नहीं है, इन दैट केस एम्बेडेड डेरिवेटिव आता है. अब मैंने डिसाइड किया कि मैं $50 मिलियन पे जो सोलार पैनल्स है वो बाई करने वाली हूँ आफ्टर 6 months. फिर उन लोग ने बोला है द ऑब्लिगेशन टू सेटल डॉलर हैज़ बिन एवेल्युएटेड, मतलब क्वेश्चन में ही बोल दिया कि एम्बेडेड डेरिवेटिव है विच इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द होस्ट परचेज कॉन्ट्रैक्ट. फिर उसके बाद उसने बोला, उसने हमें स्पॉट रेट दिया है 1 जनवरी का, 6 month फॉरवर्ड रेट दिया है ऑन 1 जनवरी एंड स्पॉट रेट ऑन 30th June. अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि उसने उसकी पोजीशन सिक्योर की, हेज किया, कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं बोला है. डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव उन लोगों ने स्पेसिफाई भी किया, तो अपन को वैसे सोचना है. एम्बेडेड डेरिवेटिव में देयर आर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज योर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर वन इज योर करेंसी वाला डेरिवेटिव वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट. अब मेरा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में मैं इक्विपमेंट लेने वाली हूँ, सोलार पैनल मुझे बाई करना है, दैट इज़ माई एक्चुअल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो है ये मैं बाई करने वाली हूँ. मैंने 1 Jan को तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, एक्चुअल में तो 30th June को मैं बाई कर रही हूँ ना, इज ड्यू आफ्टर 6 months. सो 30th June को आई विल बी बाइंग सोलार पैनल. सोलार पैनल अकाउंट डेबिट टू पेएबल. अब यहाँ पे इन जनरल वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग जो भी फॉरेक्स में खेल रहे हो ना, उसको तो तेरे होस्ट वाले जो मेन चीज़ है, तो जो तेरा मेन असेट लाइबिलिटी है उसके साथ मत खेल, उसको सेपरेट रख. तो तेरा ऐसा नहीं कर कि सोलार पैनल का भी भाव उसके वजह से बढ़ा रही है क्योंकि तेरा फॉरेक्स चेंज हो रहा है. सो इन जनरल जो सोलार पैनल का जो रेट है विच इज़ $50 million दैट यू विल रिकॉर्ड, जो तेरा फर्स्टली तेरा स्पॉट रेट तो जान दे, जो तू 1 Jan पे बैठी थी, जो तेरा 1 Jan पे फ्यूचर रेट मिल रहा था तेरे को 6 महीने का आगे का फॉरवर्ड रेट 65 रुपीज़ का. मतलब January 1 जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब मुझे पता है कि 6 महीने बाद इन जनरल प्राइस ये चल रही है, तो ये 65 पे तो उसको कैपिटलाइज करेगी सोलार पैनल को, विच कम्स टू 3250. सो 50 million इंटू द 6 month फॉरवर्ड रेट ऑन 1 January itself, वो वाले रेट पे सोलार पैनल को कैपिटलाइज कर दिया, सोलार पैनल टू पेएबल. अब उसके बाद इन जनरल वैसे तो टेक्निकली ईयर एंड पे अपन मार्क टू मार्केट करते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को, बट यहाँ पे कुछ 31st March की इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. डायरेक्टली यू आर जंपिंग टू 30th June. अब 30th June को एक्चुअल स्पॉट रेट जो हुआ वो 66 हुआ, वर्सेज अगर मैं 1 Jan को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती तो मेरा 65 में हो जाता. तो मेरा टेक्निकली ₹1 मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं फॉर एवरी डॉलर. ₹1 का लॉस हुआ, बिकॉज मैंने कुछ हेजिंग वेजिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की नहीं थी. तो अब ये जो ₹1 का लॉस है ये मेरे को बुक करना पड़ेगा. ये जो लॉस है वो मैं करूँगी PNL टू DFL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी.
बिकॉज इट्स टेक्निकली तेरा लाइबिलिटी जैसा हुआ ना, ये फाइनेंशियल लॉस हुआ करके. एंड फिर फाइनली ये DFL को मैं क्लोज आउट करूँगी इनटू पेबल अकाउंट. सो DFL अकाउंट डेबिट टू पेबल. पहले तो एक्सपेंस आउट किया, मतलब ये जो 50 का, ये जो ₹1 पर डॉलर का चेंज हुआ ना, उसको एक्सपेंस आउट किया. उसको मैंने सोलार पैनल में कैपिटलाइज नहीं किया, उसको एक्सपेंस आउट किया. तो मेरा हुआ PNL टू DFL. एंड फाइनली DFL को तो एट द एंड ऑफ द डे हैव टू क्लोज. तो DFL टू पेबल. एंड फाइनली पेबल टू बैंक. पेबल टू बैंक तो मेरा एट द एंड ऑफ द डे तुझे चेक करना है तो देखियो, पेबल टू बैंक तेरा आया 3300. एंड फिर एक्चुअल में भी देख कि पेबल तो हाँ मेरा एक्चुअल जो स्पॉट रेट है उस पर आएगा ना, विच इज 66 रुपीज़. एक्चुअल में 30 जून को जो स्पॉट रेट आया मेरे को तो उस पर पे करना है. सो मेरा उसके साथ मैच हुआ तो हाँ करेक्ट गया मेरा आंसर. तो पहले तो इसमें होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एम्बेडेड डेरिवेटिव है, दोनों को सेपरेट करना. जो भी होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट डे को तो तू रिकॉर्ड नहीं कर रही है, जब उसका ड्यू डेट है तभी तू रिकॉर्ड कर रही है. लेकिन तू जो रिकॉर्ड कर रही है वो रेट पे रिकॉर्ड कर रही है कि डे 1 पे जब तुझे पता चला कि तू कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है वो दिन का फॉरवर्ड रेट पे यू विल बी रिकॉर्डिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट. जो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्क टू मार्केट करेगी ईयर एंड पे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी है. अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो नेवर माइंड. फिर उसके बाद फाइनल डे पे तू देखेगी कि स्पॉट रेट क्या है, वर्सेस अगर तू डे 1 पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देती तो क्या रेट होता. वो दोनों रेट का डिफरेंस से तुझे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है. फिर अकॉर्डिंगली टू PNL टू DFL करती या फिर तो DFA टू PNL करती, इनकम या एक्सपेंस को बुक करती. एंड दूसरा तेरा इफेक्ट जाता लाइबिलिटी या असेट में. ये वाले केस में अपना लाइबिलिटी में गया. एंड फिर तू DFL को एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू क्लोज आउट, तुझे पेबल में कन्वर्ट करना है तो तू कर रही है DFL टू पेबल. एंड फाइनली तू पेबल दोनों को कंबाइन करेगी. जो तेरा सोलार टू पेबल प्लस DFL टू पेबल तूने बुक किया है तो पेबल 2 बार आया. पेबल का टोटल इफेक्ट देखना एंड देन उसको क्लोज आउट करने के लिए पेबल टू बैंक. एंड दिस पेबल टू बैंक इवेंचुअली वुड बी एट द रेट जो रेट तेरा एक्चुअल रेट टर्न्ड आउट ऑन 30th जून. फिर उसके बाद इलास्ट्रेशन 119. ये क्या बोलता है, एक एंटिटी A है जिसका करेंसी फंक्शनल करेंसी INR है, दूसरी एंटिटी B है उसका भी फंक्शनल करेंसी INR है, लेकिन उन लोग ने एंटर किया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ $10 लाख सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, मतलब तीसरी करेंसी में एंटर किया. तो एम्बेडेड डेरिवेटिव हो गया. नाउ दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दे एंटर्ड ऑन 1st January एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू सेल एन इक्विपमेंट ऑफ $10 लाख ऑन 30th जून. ठीक है, 1st January में उसने एंटर किया और उसको 30th जून को बेचना था. तो सबसे पहले एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये रिसीवेबल पॉइंट ऑफ व्यू है. तो रिसीवेबल टू इक्विपमेंट, वी आर सेलिंग द इक्विपमेंट. तो रिसीवेबल टू इक्विपमेंट और ये मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगी ऑन 30th जून. बट मेरा एक्चुअल में डेट जो रेट है वो कौन सा रेट होगा डे 1 पे, विच इज़ जनवरी के दिन पे ही जो रेट है 6 मंथ फॉरवर्ड रेट है, मैं वो वाली रेट पे रिकॉर्ड करूंगी ऑन 1st January. 6 मंथ फॉरवर्ड रेट जो आ रहा है, तो जैसे कि अपने क्वेश्चन में 55 रुपीज़ है तो मैंने 55 पे रिकॉर्ड किया. फिर उसके बाद मैं PNL में जाऊंगी. PNL में 1st January को तो मेरी कोई एंट्री नहीं आएगी. 31 मार्च का जो ईयर एंड है उन लोग ने अमाउंट्स दिए हैं कि क्या मेरी रेट होती है. तो मैं 31 मार्च का एक बार रेट देख के एंट्री मार लूँगी, मेरा प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, मैं एक बार इवेल्युएट कर दूँगी. नाउ द थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर कि योर एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो अदर रेट मैटर्स अदर देन द रेट फॉर 30th जून. मतलब अगर तू 31 मार्च को खड़ी है तो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट देखेगी, अगर तू 1st January को खड़ी है तो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट देखेगी. तेरे को स्पॉट रेट से घंटा फर्क पड़ता है. तो हमेशा देखेगी कि फ्यूचर का मतलब आज के दिन मेरी 30th जून की क्या रेट चल रही है वो देखेगी. सो 31 मार्च को यू सी 3 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या है. 3 मंथ फॉरवर्ड रेट था ये वाले क्वेश्चन में 45. तो पहले तो मेरा 55 था लेकिन अब 45 हो गया. एंड मेरे को क्या है, मेरे को डॉलर रिसीवेबल है तो सॉरी आई हैव टू सेल डॉलर एंड आई विल गेट रुपीज़. तो अब मेरे को $1 के बदले पहले 55 मिलता, अब मेरे को 45 ही मिल रहा है, तो मेरा लॉस हो गया. तो इसलिए मैंने किया PNL टू DFL. फिर उसके बाद 30th जून को एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में रेट बिकेम 60 रुपीज़. तो मैंने क्या किया, मैंने PNL टू DFL करके 31 मार्च को जो एंट्री की उसके बाद मेरा DFL वाला मैंने 55 तक तो रिकॉर्ड कर ही दिया था, सॉरी 45 तक किया था मैंने, लॉस रिकॉर्ड किया था. बट एक्चुअल में क्या हुआ, बाद में रेट मेरी बढ़ गई तो मेरे लिए अब प्रॉफिट टर्न आउट हुआ. तो 45 था पहले, अब 60 हो गया, मतलब मेरे को 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया इन अ वे. बट एक्चुअल में मैंने क्या किया था, मेरे पास ऑलरेडी DFL था तो पहले तो DFL जो ऑलरेडी है उसको मैं रिवर्स कर दूंगी. तो जितना DFL था उतना रिवर्स कर दिया, बैलेंसिंग फिगर DFA में डाला एंड 2 PNL आया.
सो मेरा नेट गेन जो आया वो 150 का आया, बिकॉज 45 माइनस 60 इज 15 और मेरा कितना है, मेरा $10 लाख है. सो मतलब अराउंड 150 मिलियन होता है कुछ, तो 150 का गेन दिया. तो फाइनल एट द एंड ऑफ द डे मेरा DFL तो क्लोज आउट हो जाता है, सिर्फ DFA पेंडिंग रहता है और DFA जो होता है वो 50 की वैल्यू पे खुला रहता है. अब मैं स्पॉट रेट 30 जून को उसको मैं क्लोज आउट कर रही हूँ, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड DFA कॉन्ट्रैक्ट को. तो मैं DFA को रिसीवेबल में क्लोज कर दूंगी, तो रिसीवेबल टू DFA किया मैंने. एंड फाइनली बैंक टू रिसीवेबल कर रही हूँ. बैंक टू रिसीवेबल वो वाले रिसीवेबल में 550 था, इधर 50 था. तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे बैंक टू रिसीवेबल 600 आया. और मुझे ये 600 को अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैं देखूंगी कि एक्चुअल में मेरा क्या हुआ. मेरा स्पॉट रेट 60 था और मेरे को उसको क्या देना था, 10 लाख. तो 60 इंटू 10 lakhs एंड इट विल मैच. तो फिर ठीक है, करेक्ट क्या है. अभी अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए. नाउ वी आर कमिंग टू हेज अकाउंटिंग. डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बेसिकली मेरे को पता है कि एम्बेडेड डेरिवेटिव में क्या होता है, मेरे को पता है कि भाई मेरे को कुछ तो बाई करना है लेकिन आई एम नॉट सिक्योरिंग माई पोजिशन. तो इसलिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेपरेटिंग द होस्ट एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. एंड मैं सब कुछ फॉरवर्ड रेट पे देख रही हूँ, गेन लॉस एवेल्यूएट कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू इन्फ्लेट माई एक्चुअल असेट या लाइबिलिटी जो मैं ले रही हूँ, मेरे को उसको इन्फ्लेट नहीं कर रहा है. मेरा पेबल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द डे नेट ऑफ होके क्यूमुलेट होके फिर वो बड़ा हो जाएगा. बट जो मैंने जैसे कि सोलार पैनल बाई किया, मुझे नहीं चाहिए था कि मेरा फॉरेक्स का इफेक्ट सोलार पैनल पे आए जस्ट बिकॉज आई एम हेजिंग एंड स्पेक्यूलेटिंग वर्सेस आई एम नॉट हेजिंग एंड आई एम गोइंग फॉर स्पेक्यूलेटिंग. तो इसलिए मेरे को नहीं चाहिए था कि सोलार पैनल इन्फ्लेट हो. वर्सेस हेज अकाउंटिंग में क्या होता है, आई एम एक्चुअली ट्राइंग माई बेस्ट. मैं कुछ तो कर रही हूँ, फ्यूचर ऑप्शन कुछ तो एंटर करके आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मेरा बहुत गेन लॉस ना आए फ्यूचर में बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन. सो वी आर नाउ गोइंग टू सी अबाउट हेज अकाउंटिंग. क्वेश्चन 15 है. क्वेश्चन 15 क्या बोलता है, एक है बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ कॉपर. ऑन 1st of April 2021 इट हैड 100 kgs ऑफ कॉपर कॉस्टिंग ₹70. तो टोटल 7,000 होता है. एंड उसने डिसाइड किया था कि उसने 1st of April को डिसाइड किया था कि 30th September को ही विल सेल दिस कॉपर एट द रेट ऑफ $100. एंड तभी के दिन की रेट क्या थी, तभी के दिन की रेट जो भी थी $100 का उसने बेचा, तो 70 की रेट. एंड फिर उसने हेज किया फ्यूचर्स में जाके, हेज करके उसको पता चला हेज का जो रेट था दैट वाज 76 पर डॉलर. ठीक है, तो ये सम कैसा था, एक बार वापस करते हैं. ऑन 1st of April वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सम कॉपर्स एंड दैट सेलिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन 30th of September विच इज़ आफ्टर 6 months. उसने एंटर किया है टू सेल एट $100. अब वो क्या करता है, वो हेज करता है. ही हेजेस बाय एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 76 पर डॉलर की रेट पे होता है. 76 पर डॉलर मतलब अराउंड 7,600 हो जाता है टोटल. ओके फाइन. नाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है 30th September को मैच होगा, ऑल दैट इज़ फाइन. फिर उसके बाद फाइनली जब एक्चुअल में 30th September आता है ना, तब उसका स्पॉट रेट, अब यहाँ पे ना थोड़ा वियर्ड हो गया है. स्पॉट रेट ऊपर उन लोगों ने मेंशन किया 30th September का 72 पर रुपीज़ पर डॉलर, बट नीचे जाके ना उन लोग ने मेंशन किया 71. तो एक जगह 72 दिया सेम दिन का और एक जगह 71 दिया. फिर उन लोग ने ये भी बोला है कि तुम्हारा जो परसेंटेज होता है इंटरेस्ट का 6%. एंड उन लोग ने बाद में एक बार रेट की समरी दी है. उन लोग ने बोला 1st April को तुम्हारा रेट क्या था फ्यूचर प्राइस का, 30th June को क्या था एंड 30th September को क्या था. दीज वर ऑल फॉरवर्ड रेट्स. ओके, मतलब एवरी रेट वॉज पर्टेनिंग टू 30th September, बट 1st April को क्या था, 30th June को क्या था एंड 30th September को क्या था. अब सबसे पहले तो ये हेज अकाउंटिंग है, ये हेज कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ पे क्वेश्चन में भी हेज बोला है कि हाँ भाई तूने हेज किया है. दूसरा हिंट है कि इसमें इंटरेस्ट होता है. सी वन थिंग रिमेंबर कि डेरिवेटिव में तेरे को इंटरेस्ट पे तू कोई प्रेजेंट वैल्यू कुछ वैसा कुछ नहीं करती है, लेकिन हेज अकाउंटिंग होता है ना, उसमें अपन प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं सब. अब देख, सबसे पहले तो 1st of April को इसमें भी 2 कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक हेज कॉन्ट्रैक्ट होगा. मेरा होस्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉज टू सेल इन्वेंट्री. अब मैं जो ये इन्वेंट्री बेच रही हूँ 1st of April को तो कोई एंट्री नहीं आएगी, 30th September को ही एंट्री आएगी जब मैं एक्चुअल में बेचूंगी. इट वुड बी बैंक या फिर रिसीवेबल टू रेवेन्यू. अब ये जो एंट्री आएगी ना, अपन डेरिवेटिव में क्या करते थे, डेरिवेटिव में मैं करती थी फर्स्ट कोई, मतलब मेरा अगर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता तो 1st April को ही क्या फ्यूचर की रेट है मैं फॉरवर्ड रेट पे ही बुक करती थी. आई यूज टू नॉट एक्चुअली सी के 30th September को रेट क्या टर्न आउट हुई. बट इन केस ऑफ हेज अकाउंटिंग द
रेट, द फॉरवर्ड रेट ऑन 1st of April डज नॉट मैटर, क्योंकि मैंने एक्चुअल में सिक्योर किया है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्चुअली सिक्योर द डॉलर ना, तो इसलिए 30 सितंबर को जो भी रेट आएगी ना वो रेट पे बुक कर देने का। अब यहाँ पे ना उन लोगों ने 2 रेट्स दिए, तो इधर 72 वाली रेट उन लोगों ने ले ली कि बैंक और रिसीवेबल टू रेवेन्यू 7200 करके उसने बुक कर दिया। फिर उसके बाद मेरा हेज वाला कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या हो रहा है, 1st of April को तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, अब 30 जून को करेंगे, बिकॉज 30 जून को मेरा क्वार्टर एंड हो रहा है, तो 30 जून को मैं देखूंगी कि एक्चुअल में क्या सीन है। तो 30 जून को मुझे पता चला कि जो फ्यूचर प्राइस है ना वो 76 है, 74 है। 30 जून को फ्यूचर प्राइस फॉर 30 सितंबर 74। मैंने वर्सेस एक्चुअल में क्या किया था, उन लोगों ने बोला था कि मैंने तो हेज करके रखा है 1 अप्रैल को ही 76 की प्राइस पे, तो टेक्निकली मुझे अभी दिख रहा है कि मेरा 2 रुपये तो कम मिल ही रहा है। ये क्या है, मैं बेच रही हूँ इन्वेंट्री, मतलब मेरे को डॉलर मिलेगा, तो मैं डॉलर बेचूंगी, तो डॉलर बेचूंगी तो मेरे को तो 76 में बुकड है एंड अभी तो 74 चल रहा है, सो टेक्निकली मेरा गेन है ये 2 रुपये का। तो अभी एंट्री क्या मारूंगी मैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू OCIR। अब यहाँ पे वन मोर थिंग दैट इज डिफरेंट कंपेयर टू डेरिवेटिव में अपन PNL के थ्रू सब रूट करते हैं, यहाँ पे हम OCI के थ्रू रूट करते हैं, OCIR। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू OCIR, क्योंकि OCIR ये मेरा गेन है, 76 मिलेगा मुझे, जबकि एक्चुअल में बाजार भाव तो 74 चल रहा है। वन मोर थिंग दैट इज डिफरेंट इन हेज अकाउंटिंग, इसकी यार ये जो गेन है 2 रुपये का, ये गेन तो मेरे को दिख रहा है गेन है, बट एक्चुअल में जो गेन है ना ये आज के दिन का नहीं है, दिस इज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी विच इज़ ऑन 30 सितंबर एंड मैं आज 30 जून में बैठी हूँ, तो 3 महीने बाद का ये गेन है। अब ये गेन 3 महीने बाद का गेन है ना, तो इसलिए मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे, आज के दिन की वैल्यू पे लेके आ रही हूँ। अपन डेरिवेटिव में ऐसा प्रेजेंट वैल्यू नहीं करते, डेरिवेटिव में मैं बार बार PNL के थ्रू चेंज करती जाती हूँ, मैं प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखती कि फ्यूचर में इतना होगा, फ्यूचर का गेन को मैं प्रेजेंट वैल्यू करके आज के गेन जैसे वैल्यूएट करी हूँ, मैं वैसा डेरिवेटिव में नहीं करती। हेज में ही अपन प्रेजेंट वैल्यू लेके आता है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू लेके आई तो मुझे पता चला 197 रुपीज़ हो रहा है टोटल। ना फाइनली ऑन 30 सितंबर क्या हुआ, 30 सितंबर का इधर वो अलग वाला स्पॉट लिया 71 वाला, अब 71 वाला लिया, लेकिन मेरे को तो 76, अगेन मैं 76 के साथ ही कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लॉक्ड प्राइस तो 76 ही है ना, तो 76 माइनस 71 मतलब 500 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में, बट 500 रुपये का प्रॉफिट में से 197 तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा ही है जब मैं जून का क्वार्टर एंड क्लोज कर रही थी तब, तो 500 माइनस 197 303 हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू OCIR अगेन। नाउ एट द एंड ऑफ द डे फाइनली 30 जून को तो क्या करेगी ना, ये जो भी तेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 197 एंड 303, तो टोटल तेरा 500 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अब तू नेट ऑफ करेगी, अब तो सेटल करेगी। देख फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट कैसे होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा नेट बेसिस पे सेटल होता है, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। सी वहाँ पे अपन क्या करते थे, वी यूज टू क्लोज डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट टू पेबल या रिसीवेबल वाला अमाउंट, बट ये वाले केस में यू कैन नॉट क्लोज इट दैट वे बिकॉज यू हैव एक्चुअली एंटर्ड इनटू अ हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक, राइट। सो तुझे बैंक के साथ सेटलमेंट करना पड़ेगा। सो फाइनली 30 सितंबर को तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट करेगी बैंक को पैसे देके, तो बैंक से पैसे मिलेंगे, तेरा गेन है इधर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30 सितंबर 500 रुपये जो भी तेरा क्यूमुलेटिव बैलेंस है तेरा वो ले लेना। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो रिमेंबर कि भाई तूने इधर सब OCIR में ये बुक किया था प्रॉफिट, तो OCIR को तेरे को PNL में रिक्लासीफाई करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज OCIR एंड नॉट NR, तो तेरे को रिक्लासिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी PNL में।